Okay, very good evening to all of you, beta. We are going to start with what? Integrated rate law for, first order and zero order. Okay, we have already started with chemical kinetics. Chalo, beta. Now look here, please. Exam mein they will be very specific. What is written here? Integrated rate law for which order? First order. For which order? And we have to calculate rate constant means K. N is equal to 1. First order means you have to read question carefully. Acha, this is not, A is not product. A is what your reactant. Please write it. A is reactant and reactant is giving product. रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट ऐसा लिख दिया मैंने, वरना बच्चा क्या सोचता है कि ए रिएक्टेंट है, पूरे चैप्टर सॉरी प्रोडक्ट है, पूरे चैप्टर में ए इज रिएक्टेंट एंड बी इज प्रोडक्ट। इधर पे नोट्स करो, ये लाया नहीं कुछ भी, ऐसे ही आ जाता है मुंह उठा के। ए गिव्स प्रोडक्ट, डन। चलो, अच्छा, आई एम कैरिंग आउट रिएक्शन बेटा, आई एम कैरिंग आउट रिएक्शन। Keegan, have you done this right? अच्छा, initially how much it was beta? A0. After some time it is becoming how much beta? AT. अच्छा, so this is the time interval. So let A0 be the initial concentration when time was 0 and this is when time was t. Right now beta, 10 minutes के बाद let AT be the final concentration when time is t. Now during this every step beta, let us say during each fraction of second how much concentration is changing? dA. dA means small, in small time interval dt. इतना समझ में आ गया? अच्छा, व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ नहीं, व्हाट इज फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा कभी भी रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते थे? माइनस। तो क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। समझ में आता है? और रेट ऑफ रिएक्टेंट देख, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाय डी टी। क्लियर? अच्छा, रेट लॉ में क्या होता था? आर इज इक्वल टू के ए रेस टू एन। हाउ मच इज ऑर्डर बेटा? अरे रिएक्टेंट यही था ना, a raised to n, where n is order. How much is order given here? 1. So I'll get this. So I'll get what? R is equal to Ka. Clear? अच्छा, यहाँ पे भी ये आर आर दोनों का सेम है, बराबर सेम है कि नहीं? ऐसा दिखता है कि नहीं? सॉरी सॉरी, दैट इज व्हाट दिस इज दे हैव डन प्रॉब्लम, इसको ऊपर रखना चाहिए। दिखता है क्या ये यार? अरे बोलो ना। So now what is there beta? This minus dA by dt is equal to K or not? Tell me. I've shown everything. Look here. अच्छा, ऊपर ही ले लेता ना मैं। देख रहे? हाँ, ये देखना, रेट ऑफ रिएक्शन से ये मिला कि नहीं? रेट लॉ एन वन क्यों आया? बिकॉज क्वेश्चन में दिया वन। अभी तो ये के है, ये एक्स जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, के जैसा ही दिख रहा है ना। ये वन और टू को कंपेयर कर, दोनों का क्या सेम है? आर आर सेम है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विल बी ऑल्सो सेम और नॉट? अच्छा, अभी क्या किया बेटा? ए को एक तरफ ले ले, ये ए को नीचे लाया इधर पे और डी टी को यहाँ पे लेके गया, तो माइनस डी बाई डी टी मिला कि नहीं? अरे बोलो ना। अब बेटा ना, अभी ना तुम घर से इधर आ रहे हो तो बेटा टोटल ओवरऑल चेंज अगर वी वांट टू कैलकुलेट, तो व्हाट वी डू इन मैथमेटिक्स, वी इंटीग्रेट। व्हाट वी डू? So now what is I'm going to do? I'm going to do integrate. Whenever we do integrating these two on both the side, integrating these two on, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ऐसा सांप जैसा कुछ बनाने का, सांप। दिस इज इंटीग्रेशन। माइनस कभी भी बाहर होता है, इंटीग्रेशन माइनस डी ए बाय ए, राइट? अच्छा, when in integration constant should be always outside. K is a constant, it will be outside. And I will put a snake sign. This is integration of dt. Hey, now how much was my initial time? I'm doing integrating within the limit. When time was 0, what was my concentration? A0. When my time was t, अरे यार ऊपर लिख रहे हैं ना, तो यार what was my concentration? So integrating between the limits. Are you getting it? पढ़ा है थोड़ा बहुत ऐसा लिमिट्स? पता है थोड़ा बहुत बेटा? विद इन द लिमिट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, integration of dy is, so integration of dt will be very good. Integration of dx by x is log x, नहीं पढ़ा है? अच्छा, integration of dy by y is log y. Are you getting it or not? So integration of dA by a will be log a. इतना समझ में आता है? तो चलो बेटा आ जाते हैं। ये देख, इंटीग्रेटिंग बिटवीन व्हेन टाइम इज 0, a is a0, व्हेन टाइम इज t, a is a t, बराबर। ये देख ऐसा सांप जैसा बनाया कि नहीं? देखो यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए इज व्हाट? लॉग ए। समझा कि नहीं? नीचे लोअर लिमिट अपर, माइनस बाहर पड़ा है कुत्ते की तरह, देखो यहाँ पे। अच्छा, ये के यहाँ पे लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, dy is y, so dt is t, lower limit and upper limit. And how, what we do?
अपर लिमिट माइनस लोअर, तो लॉग ऑफ 80 माइनस लॉग ऑफ A0, यहाँ पे लॉग वॉग नहीं है तो t माइनस जीरो आ जाएगा। ये माइनस माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा। अच्छा मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, अरे बोलो ना। तो लॉग ऑफ A0 माइनस लॉग ऑफ 80 इज इक्वल टू KT, थोड़ा बहुत लॉग आपको पता होना चाहिए। लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B इज व्हाट, वेरी गुड, लॉग A बाई B, बराबर है कि नहीं। सो व्हाट आई डिड हियर, लॉग A बाई B इज इक्वल टू KT। अच्छा अभी बेटा ये लॉग टू द बेस ई है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, बट हम लोग पता है लॉग टेबल में ढूंढते हैं, दैट इज लॉग टू द बेस 10। क्या है लॉग टू द बेस। अच्छा बेटा लॉग टू द बेस ई को अगर तेरे को लॉग टू द बेस 10 में लिखने का है, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ लॉग टू द बेस 10, तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा, 2.303 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मतलब वॉट एवर लॉग ई था उसके जगह पे तुम लोग को अगर ये लिखना है, अरे इंस्टेड ऑफ लॉग इफ यू वांट टू राइट log 10 you have to write 2.303 into log 10, so I'm converting this into log 10, so what I'll do instead of this what I'll write, भाई इसके छींगे 2.303 log to the base 10, समझा क्या। एवरीथिंग इज गिवन, लोग कन्वर्टिंग पूरा एक एक स्टेप वाइज बताया। अच्छा बुक में बेटा ये लॉग ई की जगह पे वो लोग ने एल एन लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, एल एन एंड लॉग टू द बेस इज वन एंड द सेम। ठीक है अभी मेरे को आंसर में क्या पूछा था आरुष बेटा, के पूछा था कि नहीं, तो मैंने के को एक तरफ लिख दिया और ये टी नीचे चला जाएगा कि नहीं, तो के इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 A0 बाय, तो दिस इज द रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर विच ऑर्डर। Now, beta, in your chapter, beta, whatever we'll do for first order, same thing we'll do for what? Zero order. Whatever we'll do for first order, same thing we will do for. चलो बेटा, अभी एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, बोलो बेटा। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर विच ऑर्डर, देखो बेटा बराबर लिखा लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, जीरो ऑर्डर। आगे जा, ये हेडिंग दिखाई दिया क्या, ये नहीं, आगे जा और आगे जा, तो ये हो गया तेरा, यहाँ पे यहाँ तक मैंने कराया, ये बाद में मैं बता हुआ है, टर्न करते, और ये हेडिंग देख बराबर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ ये मिला क्या। चलो बेटा फिर से वापस यहाँ से, ए शोभित बेटा ये क्या है, ए प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है तेरा, लिख लो वहां पे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है अभी स्टार्टिंग का पार्ट पूरा सेम ही लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे हम लोग ने वहां पे, क्या लिखा था, लेट A0 बी द कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम वाज जीरो, AT बी द कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम वाज t, बराबर है कि नहीं, ए डी ए बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन टाइम इंटरवल dt, बराबर है। अच्छा बेटा है ना, जुलाई फर्स्ट वीक से शायद है, सुन हीरो, जुलाई फर्स्ट वीक से अपना ये वाला क्लास हमेशा, मतलब मेरा यहाँ पे क्लास चलेगा ना, तुम बाजू के क्लास में बैठ पाओगे, कौन सा वो फिजिक्स वाला नहीं, इमीडिएटली बाजू में है वो क्लास, उसमें बैठो, ठीक है ना। एंड यू कैन कम डायरेक्टली, सैटरडे को तेरे को घर जा, यहाँ पे आके बैठ, खाना खा, सब कर, मैं तेरे को एक्स्ट्रा लेगा यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर, ये समझ में आएगा, लेट A0 बी कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम इज जीरो, ATB, बराबर है, ये पूरा सेम किया था। फिर हम लोग ने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन, जो यार रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तो रिएक्टेंट के लिए व्हाट वी राइट, R इज इक्वल टू व्हाट, माइनस DA बाय, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई रेट लॉ, रेट लॉ में क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू A रेस टू, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अंडरलाइन कर जीरो है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, A रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट, वन, तो R इज इक्वल टू K हो जाएगा कि नहीं, बोलो। सो R इज इक्वल टू K, अच्छा ये भी R ये भी R दोनों सेम है, तो K इज इक्वल टू व्हाट, माइनस DA बाई dt। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। तो देख यहाँ तक ये हो गया, आर इज के दिख रहा है ना, एक्स तो नहीं दिख रहा है ना, देखो नोट्स में के जैसा ही दिख रहा है ना, देख लो। अभी दोनों इक्वेशन देख बेटा, ये आर सेम हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस और नॉट, टेल मी, राइट। अभी क्या करने का, साफ बनाने का, इंटीग्रेट करने का, मालूम है ना कैसे। ये देख, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देखिए dt को मैंने यहाँ पे ले लिया, dt को कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इंटीग्रेट किया, देख रहा है कि नहीं, माइनस बाहर आता है, के ऑल्सो कम आउटसाइड, लोअर लिमिट व्हेन टाइम वाज जीरो इट वाज A0, व्हेन टाइम वाज t इट इज 80। बेटा यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप गापची हो गया है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होता था, यहाँ पे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज व्हाट, ए, बाहर क्या था ये, माइनस, बरोबर है, और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बेटा, नीचे क्या लिखोगे, A0, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट, बाहर के ही रहेगा, और नीचे यहाँ पे क्या होगा, जीरो टी, ये स्टेप मिसिंग है बेटा, इसके बाद ये स्टेप आता है, फिर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, समझा कि नहीं, कर लो ना। ये अभी अच्छे से दिखाई देता है ना, छोटे टीवी से इसमें बड़े में अच्छे से दिख रहा है ना।
अच्छा, अभी इसका वो हम लोग फंक्शनिंग भी वो करेंगे थोड़ा बहुत, इसका सॉफ्टवेयर नहीं है ये पावर पॉइंट का, वो सब डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो। ए, अब क्या करेगा बोल। अपर में कौन है बोल। ए टी माइनस ए जीरो इजिकल टू वॉट के टी माइनस जीरो आएगा कि नहीं। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस को पहले लिख सकता हूँ कि नहीं, ए जीरो को। ए जीरो माइनस ए टी इजिकल टू वॉट कट टी, बरोबर है। टी यहाँ पे, के को यहाँ पे, टी यहाँ पे ले ले तो ये मिलेगा कि नहीं। तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर विच ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। समझ में आ गया। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, याद रखना। अच्छा, कभी कभी सुनना बेटा, ये इनिशियली मेरा ए जीरो ये था, कितना था। इसमें से आफ्टर टाइम है ना एक्स रिया, मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 10 रुपया खर्चा कर दिया, तो फाइनली क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स। ए की जगह पे क्या डालो, ए। ए टी की जगह पे क्या डालोगे, ए माइनस एक्स। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फाइनली, के इजिकल टू एक्स बाई टी मिलेगा कि नहीं। ये जस्ट एक्स्ट्रा खाली एमसीक्यू में कभी आया था, तो ये के इजिकल टू एक्स बाई टी समझा गया। हो गया। ओके। अच्छा, तो हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए के ढूंढा, और क्या जीरो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। ना चलो बेटा, आ जाते हैं इधर। ये भी पूछेगा बेटा, डिराइव एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। तो क्या करोगे बेटा, सुनो। ये जो इक्वेशन 3 तक था एज इट इज, यहां तक, यहां से कॉपी करना। इक्वेशन 3 तक यहां तक कॉपी करना, फिर यहां पे देख, इक्वेशन 3 को यहां तक लाया है मैंने। अभी आप लोगों ने मैथ्स में कभी पढ़ा है कि नहीं बेटा, लॉग रिमूव करते तो क्या होता है। अच्छा, आपको पता है लॉग टू द बेस ई रेस टू ए, और ये बी है। तो इफ यू रिमूव लॉग देन व्हाट विल हैपन बेटा, यार दिस ए विल बिकम व्हाट, ये जो बेस होता है वो, दिस इज द फॉर्मूला। हैव यू स्टडीड दिस और नॉट। नहीं पढ़ा है कभी। लॉग तुम लोगों को कराया नहीं क्या स्कूल में कभी। नहीं पढ़ा है। अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, रिमूविंग लॉग। अच्छा सुन बेबी, ये व्हाट इज द बेस हियर, so that base will come here, and if I removing log from here, then this whatever number is there, it will become the power of my this base. This is the formula. If you want, देख यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ये देखना लिखा तो है मैंने तुम्हारे लिए। तो चल बेटा, रिमूविंग लॉग तो क्या हो जाएगा, ये ए की जगह पे क्या था, ये ए है कि नहीं बोल बेटा। तो देख ए जीरो बाई टी, और दिस इज व्हाट वाज योर बेस ई, और ये बी था तो ई रेस टू। अच्छा, अभी बेटा मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। अरे देखना, इन्वर्टेंडो, ये ऊपर लिया ये नीचे लिया, बराबर है कि नहीं। अच्छा, अभी एटी यहाँ पे लिया, ए जीरो ऊपर आएगा तो ए जीरो ई रेस टू माइनस के टी हुआ कि नहीं। एनीथिंग रेस टू इन द फॉर्म ऑफ ई वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, विच फॉर्म। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ। डिराइव हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, डिराइव हाफ लाइफ पीरियड फॉर। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब क्या है बेटा, मेरा आज वेट है 100 kg, कितना वेट है। आफ्टर लेट अस से 30 days, मेरा वेट कितना हो गया बेटा, 50 kg, कितना हो गया। तो मेरा वेट ओरिजिनल का हाफ हुआ कि नहीं। तो वट एवर टाइम इट रिक्वायर फॉर ओरिजिनल टू हाफ इज नोन एज वॉट, हाफ लाइफ पीरियड। ये टाइम को मैं फिर क्या बोलूंगा, टी हाफ। टाइम को क्या बोलूंगा, T half। तो रिएक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, इफ माई कॉन्सेंट्रेशन इज 5 मोलार्स, क्या है, आफ्टर 10 minutes it becomes 2.5 molars. So it is the time required for reaction to get half of its original concentration. क्लियर है। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर हुआ क्या, ये वाला कोई फिजिक्स में तुम लोग को रेडियो एक्टिविटी कुछ पढ़ाया गया। रेडियो एक्टिविटी किया कि नहीं किया, तुम लोग ने नहीं किया अभी तक। उसमें ये आएगा, पूरा सेम आएगा, खाली जहां पे भी के है उसके जगह पे लैम्बडा आएगा। क्या आएगा, लैम्बडा। एनीवेज, ए, if this is Keegan, if this is my A zero, then this will be my 80 or not, tell me. Yes. A zero is 100, 80 is 50. So can I write 80 as A zero by 2? कॉमन है ना, 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 100/2। चलो बेटा, अभी इक्वेशन करें। द हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टर टू फॉल टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल concentration. Hey, now we are doing for which order? First order. The first order में what was the value of R? K 2.303 upon T log to the base 10 A zero by। ये जब टाइम टी हाफ होता है, अनवी अवनी अवनी बेटा, when time is t half, 80 is a0 by 2 or not. So what I'm going to do here, I'm going to put t half, and instead of 80, what I'm going to put a0 by 2. So look, a0 cancel, 2 will go up or not, tell me. This here it will become t half or not, right beta.
अच्छा टू, ये कैंसिल, टू ऊपर जाएगा तो लॉग टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग टू? 0.3010, 0. हाँ ये मैं बता रहा हूँ, लॉग टेबल में देखोगे तो लॉग टू का वैल्यू ये है, ठीक है ना बेटा? अब मैं क्या करेंगे यहाँ पर देखो, हे मैन, हेलो कीगन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू यार, इंस्टेड अरे मैं ऊपर ले लूँ क्या इसको, और लॉग टू की जगह पे हम लोग क्या लिखा, ये 0. क्यों लिखा, तो लिख लो यहाँ पे लॉग टू का वैल्यू इज, लिख लो भाई, सिंस log 2 is what? अच्छा ठंडी लग रहा है बहुत, हम कर देते थे कि डोंट छुपा में, क्या करने का है बोलो, ऊपर का रूप रहा था, ऊपर कर दिया, फ्लैट पे बंद कर दिया अभी। हाँ, ठीक है। क्यों ये जुड़ रहे हैं, ग्यारह सो रही है, ये जो स्टार्ट खाली किया इसमें देखो नींद आ रहा है, तुम लोग इतना जल्दी, फिर कॉफी वाला है। हाँ कॉफी वाला है। कॉफ चाय वाला आएगा ना, वेट होगा। आएगा तो मैं बोलता हूँ ना, देना ना, पिलाता ना भाई, बोलने का ना बेटा, को पिलाओगे, पिला जाओ। ओके, डन डन डन, क्या हो गया भाई? हाँ बर्निंग, आई सर बर्निंग होगा भाई इसकी वजह से, अरे वो कर दूंगा बेटा, अभी तो अरे सेट सर हुआ उसके वजह से नहीं है उसको। उसको है पहले से प्रॉब्लम है, चश्मा वश्मा है क्या, स्पेक्स है? हाँ अभी नहीं है। चलो ये आरुष बेटा समझ में आया यहाँ तक, चलो अभी हम लोग क्या किया बोलो, ए इसको मल्टीप्लाई करते तो व्हाट वी गेट 0.693। अच्छा ये टी एफ को यहाँ पे लिया, के को यहाँ पे लिया, तो ये रीअरेंज हो गया कि नहीं बोलो? अच्छा नाउ टेल मी बेटा, आरुष बेटा ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट है, वेन एवर इक्वल टू एंड कांस्टेंट वी रिमूव व्हाट साइन वी ऐड, प्रोपोर्शनैलिटी, पता है कि नहीं? अच्छा तो टी, अच्छा एग्जाम में सम के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, टी एफ इज 0.693 बाय के, और टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा ये पूरे फाइनल इक्वेशन में कहाँ पे भी देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो नजर आ रहा है क्या? मीन्स व्हाट, टी एफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट। आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन थ्री डिफरेंट वेज। व्हाट आर थ्री डिफरेंट वेज? फर्स्ट, डिराइव इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर, तो आप कहां तक करोगे बेटा, यहां तक करोगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आरुष बेटा, अगर मैंने तेरे को ये पूछा, शो दैट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, तो आप यहां तक करोगे, ठीक है कि नहीं? तन्वी बेटा, इफ आई टेल यू शो दैट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां तक करोगे, क्लियर है? बोलो ना। अच्छा ये सिमरन बेटा, इफ आई डू दिस लुक हियर, ये टी टी हाफ मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए जीरो, ए, इफ आई, इसको मैं कितना भी बढ़ाऊंगा टी हाफ को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, तो क्या मिलेगा, इजी। ये ग्राफ भी आता है बेटा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना बेटा? ये देखो, अंडरस्टूड? ए वट एवर वी आर गोइंग टू डू फॉर जीरो ऑर्डर, लोगों को गर्मी लग रहा नहीं है? हाँ तो फैन चालू कर, हमारे साइड ही क्या, सॉरी यार मैं तेरा नाम बाद में भूल जाता, क्या है तनवीर, मेरे को सर्दी में आ रहेगा आ जाता, चलो वेट वेट, तन्वीर बेटा व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर जीरो। तो जीरो ऑर्डर में भी मेरे को ये करने का, तुम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर का के का वैल्यू क्या था बोलो, ए जीरो माइनस ए टी, याद आ रहा है कि नहीं बेटा, अपॉन के, याद आ रहा है कि नहीं, अपॉन टी टू भी ले, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर जीरो ऑर्डर नाउ टेल मी। हाँ उठ रहे, मैं वरना लिखा होगा ये, तुम लोग अगर ऐसा है तो लिखा हो गया सब एक एक चीज, नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा बेटा लिखने में, इसके लिए वी कैन कवर मेनी थिंग्स एंड वी कैन डू लॉट ऑफ योर दिस थिंग क्वेश्चन आंसर्स। चले, ए मैन व्हाट वाज फॉर जीरो ऑर्डर बेटा, दिस वाज द इक्वेशन और नॉट? अभी क्या करेंगे, टी की जगह पे क्या डालने का बेटा, टी आर, और ए टी की जगह पे क्या डालने का, ए जीरो बाई टू, बराबर है कि नहीं? तो देख मैंने यही किया, देख टी आर यहाँ पे डाल दी, अभी ये देख एलसीएम लेगी तो ये टू ए जीरो माइनस ए जीरो कितना हो जाएगा, ए जीरो, और ये टू नीचे आ जाएगा कि नहीं? मैथ्स इतना समझ में आता है कि नहीं? के इज इक्वल टू ए जीरो बाय ए 0.2 इंटू टी हाफ। अच्छा अभी बेटा आप मेरे को बताओ, टी हाफ को ऊपर ले लिया, के को नीचे लाया, ये के क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं? टू भी कांस्टेंट है कि नहीं? तो इक्वल टू और ये मैं कांस्टेंट को निकालता तो मैं कौन सा साइन डालता हूं,
प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बेटा वहां पे लिख ले, बराबर दिख नहीं रहा होगा नोट्स में, यहाँ पे लिखे A0। ए टी ऑफ इज हियर व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या आ रहा था बोलो बेटा? इंडिपेंडेंट। क्या आ रहा था? ये जो है कितना मिला तेरे को स्कोर? 22। कहाँ गया 3 मार्क? कितना मिला? वेरी लेस, वेरी लेस। देगा रास्ता देगा, फटाफट बोल। अरे नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? एक्चुअली नहीं मिला। ऑन गॉड, डिवीजन अलग है। ऑन गॉड। तेरे को थोड़ी देना आपकी मेरा है। सर मैं क्यों भी ठीक है और एक दिन पहले किया था ना। तेरे को उस दिन बोला था मैंने, ये लोग ने, वो लोग का था, ये लोग का डाउट वाउट सॉल्व किया, तू बोला पूरा करवाता था ना चैप्टर। हाँ छुट्टी भी था ना, वही मैं तेरी मम्मी को भी फोन किया था मैंने। पता है। तो फिर ये डन 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 बेटा, अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ रहा है पक्का? जो भी हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेगा, वही किसके लिए करने का? जीरो। अब बोलेगा सर एग्जाम में सेकंड ऑर्डर, अच्छा एमसीक्यू में आएगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, मैंने वो एक ट्रिक बता दिया, कोई भी ऑर्डर हो, हाफ लाइफ उसका अगर विदाउट ये सब करना है तो आप क्या करने का, देखो मैंने नीचे दिया ट्रिक। तो कोई भी ग्राफ भी खुद से बना सकते, एक ग्राफ कर दिया ना, यहाँ पे लिखा हुआ मिसिंग लिखा ना बरोबर। ए, एक मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया मैंने? नहीं, ग्राफिकल क्यों? अच्छा मैं तुमको यहाँ पे बता देता, शॉर्टकट में आ जाओ, डायरेक्टली इधर आ जाओ बेटा। ये देख, ये दिख रहा होगा बेटा, देख। अरे कोई भी एमसीक्यू फॉर nth ऑर्डर फॉर, अच्छा चलो वहां पे मत देख, यहाँ पे ही देख ले बेटा। कोई भी अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, A01 - n, वेर n इज व्हाट? ऑर्डर। चलो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं, क्या करेगी बोल बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे बोलो? अच्छा मैं यहाँ पे लिखता तो आपको यहाँ पे आता है, हाँ 1 - 1 बराबर है। तो क्या हो जाएगा 1 - 1? जीरो। मतलब क्या है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ हाँ, मतलब A0 0 हो जाएगा ना बेटा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। आज ही हम लोग ने किया तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए तू क्या करेगी बोल बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए क्या डालेंगे बोलो? जीरो ऑर्डर के लिए जीरो डालेंगे, 1 कैसे डालेगा? जीरो ना। तो मतलब देखिए तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं बोलो? अच्छा अभी मैंने सेकेंड ऑर्डर बोला तो क्या करोगे बोलो? टू डालेंगे। यहाँ पे 2 डालेंगे, वेरी गुड, 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा पहले माइनस हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ओ माय गॉड, तो अगर सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन आएगा, यहाँ पे मैंने टी ऑफ लिखा है, यहाँ पे A0 लिखा है, तो क्या होगा? जैसे जैसे A0 बढ़ेगा टी ऑफ कम होएगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? तो ये एमसीक्यू के लिए ट्रिक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे? एग्जाम में पूछेंगे ड्रॉ ग्राफ, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या था बोलो? शोभित बेटा, K = 2.303 log to the base 10 A0/80। अभी बेटा मैथ्स करते हैं, ए टी को यहाँ पे लाया, 2.303 को नीचे ले सकता हूँ कि नहीं मैं बोल बेटा? लॉग ऑफ A/B इज लॉग A - log B, बराबर है कि नहीं? अब बेटा देख, इसको मैंने एक तरफ इसको यहाँ पे लेके गया तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं? अरे दिस विल गो ऑन दिस साइड तो प्लस, एंड इफ दिस विल गो ऑन दिस साइड इट विल बिकम माइनस और नॉट? तो देख मैंने वही किया है, देख। ये मैं माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ माइनस दिस थिंग, और ये टी को बाहर लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? अरे प्लस इंटू, अरे +1 × -1 इज -1 ओनली ना बेटा। सो सेम थिंग आई हैव डन, आई हैव जस्ट रीअरेंज। दिख रहा है ना बेटा? पक्का? ये इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा है? y = mx + c। y एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे क्या है? अरे थोड़ा ऊपर कर दूं पहले, बस। y एक्सिस पे क्या है बेबी? ये x एक्सिस पे क्या है? बराबर है ना बेटा? वे स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है तो लाइन कभी वैसा नीचे जाएगा। स्लोप का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? क्लियर है? अच्छा ये y यहाँ पे y को कट कर रहा है कि नहीं? ये y एक्सिस था अपना, ये y, अरे यार ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ये कट कर रहा है कि नहीं बोलो? ये y एक्सिस था ऊपर। तो ये y एक्सिस पे जो कट करता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। कभी मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? इजी, बोलो। पक्का?
अच्छा ये कभी कभी ना बेटा वो लोग है ना क्या करेंगे पता क्या, ये सुनो, ये log 10 नहीं दिया रहेगा, ln फॉर्म में दिया रहेगा। कौन से फॉर्म में दिया रहेगा? ln फॉर्म में दिया रहेगा। वो भी मैं बताता हूँ तुम सबको। चलो वो बाद में बताता हूँ ln वाला। अभी हम लोग पहला, अभी हम लोग ने जो भी किया है किसके लिए किया है बेटा? अरे यार ln फॉर्म में करेंगे तो बेटा ये log 10 चला जाएगा ना बेटा। अच्छा ये 2.303 चला जाएगा, और ये ln देख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं खाली क्या करूंगा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा? ln। ये टी टी देने वाला है, इसके जगह पे मैं खाली क्या लिखूंगा? नेचुरल लॉग। और ये स्लोप के जगह पे खाली क्या आएगा? 2.303 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा अभी मैं इक्वेशन, ये इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं? अबे ये इक्वेशन है ना, इसको मैंने एक ऐसा लगा, लॉग ऑफ A0/80 बस। और इसको क्या लिखा? के टी 2.303, टी को बाहर लिखा ऐसा, प्लस सी ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? प्लस जीरो, सॉरी प्लस जीरो लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे कहने राइट, अरे बेटा प्लस जीरो तो बेटा ये तेरा वाई एक्सिस पे कौन है? ये एक्स एक्सिस पे कौन होगा? टाइम। स्लोप तेरे को क्या मिलेगा? ये बट वाई इंटरसेप्ट तेरा क्या है? जीरो। तो तेरा कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ मिलेगा कि नहीं? देख, अरे बेबी आवाज छे, ये एम है स्लोप, ये एक्स, ऐसे ही वो फॉर्म में लाने के लिए वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है ना बेटा? चाहिए तो पेंसिल से लिख देना, ये तेरा वाई एक्सिस है, ये एम स्लोप है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये तेरा प्लस सी। अरे ये एक्स एक्सिस पे क्या आया देखना, टी प्लॉट किया कि नहीं? वाई एक्सिस पे लॉग ऑफ A0/80। और ग्राफ तेरा ऐसा ऊपर जा रहा है कि नहीं? क्यू के प्लस था ना यहाँ पर, ये के है बेटा, दिखते हैं कि नहीं? देखना नोट्स में करेक्शन कर भाई, ये दिखता है कि नहीं? देख ले। वो यहाँ पे निकाल के डाल दिया है इसमें। यहाँ पे था ना जो वाइट, ये यहाँ पे फिट करने का था सब, वापिस मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा। कितना स्क्रूज लगा है पीछे। ये जो भी हम लोग ने किसके लिए किया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो हम लोग किसके लिए करेंगे? थोड़ा तुम लोग सोचो ना, यहाँ पे क्या फर्क नजर आएगा। चले वियति बेटा बता मेरे को क्या फर्क नजर आएगा, वो आंसर मत देख। ये देखिए, ये देखिए ग्राफ था कि नहीं? अच्छा तू मेरे को बता, whenever we do for जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में लॉग आता था क्या? नहीं। तो खाली क्या गायब हो जाएगा? बोले यहाँ से पूरा ग्राफ ऐसा ही आएगा। दिस log will disappear, this log will, if log is not there then 2.303 will be also there, ये 2.303 will not be there। फिर भी मैं पूरा तुमको अच्छा ठीक, ये देखो आ जाओ, ये देख, एग्जाम में आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का ये इक्वेशन था कि नहीं? अरे टी आई एम टेकिंग ऑन दिस साइड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है बेटा, जीरो या फर्स्ट ऑर्डर। A0 - 80, ये मैंने 80 को एक तरफ लिया तो प्लस हो जाएगा, और के टी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ माइनस, तो वाई 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 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देख रहा है कि नहीं? पूरा सेम है कि नहीं? तो तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा बोलो बेटा? नीचे आ रहा है माइनस के, लॉग लॉग गायब हो गया और 2.303 गायब हो गया बस। हो गया। क्लियर है कि नहीं? कितना इजी था बोलो? अब बेटा हम लोग को न्यूमेरिकल, अच्छा यूनिट ऑफ के का, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर, फॉर कोई भी होगा nth ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यूनिट ऑफ के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो बेटा? अरे कॉन्सेंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन में किसमें लिख सकता हूँ? मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब। बरोबर है कि नहीं? चले बेबी, जीरो ऑर्डर के लिए क्या करेगी बोल? यहाँ पे जीरो ले ले, तेरे को क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन किसमें होता है? मोल पर लीटर, और मोल पर डीएम क्यूब, टाइम विल बी ऑलवेज सेकंड इनवर्स। आ गया? मोल पर लीटर, यूनिट कहाँ गया भाई? और जीरो ऑर्डर एन का वैल्यू क्या डालने का? मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेगी वो, एन के जगह पे क्या डालेगी? हाँ तो व्हाट विल हैपन बेटा, ये 1 - 1, मतलब ये गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट, इट विल बी ओनली सेकंड इनवर्स, इट विल बी ओनली। चलो ये सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेगी बोल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - 2, -2 आ जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तो मोल इनवर्स हो जाएगा और लीटर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस।
मोल इनवर्स और ये क्या हो जाएगा पीएम क्यू प्लस में लिख, बराबर ना बेटा। बाकी टाइम इनवर्स ऐसे लिखा सब दिया हुआ है बेटा देखो। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर देख लो, इजी है, खाली एक फॉर्मूला याद रखेगा तो सब आएगा। अभी एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, बोलूंगा ना तुमको ना कभी कभी क्या देगा ऐसा सम दे देगा, देखो अच्छे से। ये तुम्हारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर कभी पूछते नहीं है मतलब, लेकिन वो यूनिट पूछ सकते हैं अप्लीकेशन बेस्ड। अच्छा ये मैंने तेरे को ऐसा दिया, ये मेरे को ना के ये किसका यूनिट है के का, मुझे के का यूनिट आया 2 × 10 रेज टू माइनस 5 सेकेंड इनवर्स ऐसा दे देगा। चल अभी सोच, मैंने बोला ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे पता चला? हाँ क्या कंसंट्रेशन नहीं है? नहीं मैंने यूनिट दिया ये तेरे को के का। हाँ वेरी गुड, अरे ये यूनिट देख के पता चला। अरे बेबी आजू ने फर्स्ट ऑर्डर नी वर्ड यूनिट वर्ड इवियती बेटा वर्ड जोनी 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 मीन। ओके चलो बेटा आई एम गिविंग दिस, शोभित बेटा के 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, आई विल टेल यू विच इज द ऑर्डर। तो बेटा कभी भी के का वैल्यू देगा ना तो यू विल ऑलवेज सी व्हाट यूनिट, देखो यूनिट देखो ना क्या है, ये यूनिट देखने का किससे मैच होता है ये देखिए तो जीरो ऑर्डर हो गया, इसी ऐसे समझाते हैं हाँ बेटा। चलो बेटा अभी देखो यूं ही यूं ही यूं ही हाँ, चलो ये सब याद हो गया। अभी गैसियस फेस का कर रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस ये दिस फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर गैसियस रिएक्शन। ये मेरा देखिए ए है रिएक्टेंट है, दिस गिव्स मी प्रोडक्ट। इनिशियल प्रेशर मेरा तब टाइम था तो इसका प्रेशर प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो उनका प्रेशर आएगा क्या? नहीं ना। इमेजिन कर टाइम टी में से इसमें से एक्स गया तो ये एक्स और एक्स बनेगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं? तो देख यहाँ पे क्या लिखा है, लेट इनिशियल प्रेशर अवे, देख रहा है लेट इनिशियल प्रेशर। अच्छा पी ए इज वॉट बेटा, ये तेरा फाइनल प्रेशर हुआ कि नहीं, ए का फाइनल प्रेशर क्या हुआ पी आई माइनस एक्स, बी का क्या हुआ एक्स, तो पीबी क्या हो जाएगा बोलो, पीबी एक्स पीसी, अरे देखना लिखा है ना पार्शियल प्रेशर, एक्स एक्स हुआ कि नहीं बोलो। अबे ये ए का पार्शियल प्रेशर था, ये बी का, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दिखा कि नहीं। अच्छा अभी फाइनल पे टोटल इन लोगों को ऐड करो क्या मिलेगा बोलो, पी टोटल कितना होगा, अरे पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी, पी ए दामाद पी माइनस है ये एक्स एक्स, हाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो, मैथ्स, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस, ओके तो एक्स क्या हो जाएगा बोल, पी टी माइनस, समझ में आया कि नहीं? अच्छा चलो अब ये पी ए का वैल्यू क्या था बोल, अरे यार ये देखो ना पी ए कितना था, पी आई माइनस एक्स, दिख रहा है कि नहीं? अभी एक्स का वैल्यू डाल दो इसमें, एक्स का वैल्यू कितना आया, व्हाट इज एक्स वी गॉट, तो पी आई एंड पी आई टू पी आई, तो पी ए इज हाउ मच बेटा टू पी आई माइनस पी टी, बराबर है। चलो बेटा वो व्हाट वाज आवर फर्स्ट, वी आर स्टडी फॉर फर्स्ट ऑर्डर 2.3 नॉट ए जीरो, तुम्हारा कितना इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग में हम लोग ने आज कितना लिया था, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कितना लिया था पी आई, कितना लिया था इनिशियल कितना था बोलो, पी आई, पी ए कितना मिला बोलो फाइनल, एटी अपना एटी कितना मिला बोलो, अरे बोलो ना कितना मिला, टू पी आई माइनस पी टी, बराबर है कि नहीं? इनिशियल एंड फाइनल बस डाल दे, क्या करेगी बोल बेटा, पूरा फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे A0/80, तो यहाँ पे खाली क्या आएगा पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी, बस इतना याद रखना है। या अगर मैं P0 लिखता तो P0 A0/80 लिखते थे तो ए P0/2 P0 माइनस पी टी, दिस इज फॉर गेशियस फेस, दिस इज फॉर विच फेस, अब बेटा हम लोग को ना ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा, फॉर आप लोगों को बेटा तुमको सिलेबस में सम्स विद फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, सम्स विल कम ओनली ऑन, चलो बेटा व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर का आज किया था ना 2.3 लॉग टू द बेस 10 इज बाय 80, बोलो। अच्छा पी ऑफ का ये पी ऑफ इज व्हाट 0.693 बाय टी किया था कि नहीं बोलो बेटा, या रीअरेंज कर इसको यहाँ पे ले इसको यहाँ पे ले, सेम ही बात हुई कि नहीं? अच्छा मैं तुमको ये भी बता दें 0.693 अपने को कैसे आया था, log 2 इंटू 2.303 अपने डेरिवेशन किया था, याद आ रहा है कि नहीं? तो बेटा कभी कभी ना तुमको अगर अच्छे से सम करना होगा फास्ट
अभी आपने बोला के का वैल्यू क्या है तुम्हारा, बोलो बेटा। ये के था 0.693 दिया, 0.693 पे आप ये लिख सकते हो कि नहीं। तो मैं के की जगह पे अभी क्या करूंगा बेटा, ये तेरे को जब इक्वेशन में डालूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा बोलो बेटा। ये के की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0.693 बाय, अरे के की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0.693 बाय टी। मैंने 0.693 बाय टी लिखा, लेकिन 0.693 का वैल्यू कितना था बोलो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये 2.303 और ये 2.303 क्या हो जाएगा, मतलब सम आपका पास। सम आपका कुछ नहीं याद रखना है, तो खाली ये दो फॉर्मूला ही है बस पूरे, ये दो ही है, इससे याद। ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है हिडन इंफॉर्मेशन, व्हाट आर दिस। अगर मैंने बोला परसेंटेज डिक्रीजेस बाय x%, बाय, तो इनिशियल कितना लेने का 100 बाय x, मतलब बाय, मतलब बाय लिखा रहेगा तो कभी भी माइनस करेगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। मैंने बोला यहाँ परसेंटेज डिक्रीजेस बाय 20%, तो इनिशियल विल बी 100, फाइनल विल बी परसेंटेज डिक्रीजेस बाय 25%, 100 माइनस 25 डिक्रीजेस बाय बोला। क्लियर है, बट ऐसा बोला परसेंटेज इज रिड्यूस टू एक्स, क्या बोला रहेगा, रिड्यूस टू एक्स। तो फाइनल इनिशियल क्या लेने का 100, ऐसा मैंने बोला रिड्यूस टू 10%, रिड्यूस टू, तो फाइनल विल बी ऑफ 10, रिड्यूस टू 20%, इनिशियल विल बी 100 एंड फाइनल विल बी, समझ में आ रहा है। तो देखिए लिखा है हिडन इंफॉर्मेशन होगा, सब में हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे 3080 नहीं देंगे, मैंने बोला रिड्यूसेस बाय 20%, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग A0 कितना लेंगे, 80 कितना लेंगे, 100 माइनस 20, समझ में आ रहा है। बाय बोला रहेगा तो, बाय बाय बोला तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट, रिड्यूसेस टू x%, तो इनिशियल 100 लेने का और ये क्या बन जाएगा, रिड्यूस टू 20%, तो दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी, अच्छा फ्रैक्शन में लिखा रहेगा तन्वी बेटा, फ्रैक्शन में लिखा रहेगा रिड्यूसेस बाय 1/3, रिड्यूसेस बाय, तो इनिशियल को क्या लेने का, फ्रैक्शन है, इनिशियल को A0 को क्या लेने का 1, रिड्यूसेस बाय 1/3, बाय मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1/3 इज हाउ मच, 2/3, रिड्यूसेस टू 1/3, तो क्या करोगे बेटा 1 और वो क्या लिखेंगे 1/3। फाइंड फ्रैक्शन रिमेनिंग बोला, मतलब क्या ढूंढने का फ्रैक्शन, मतलब मैं पहला ए से 100 था, मैं 1 कितना गया 10, तो मेरा फ्रैक्शन कितना होगा 10/100 होगा कि नहीं, मतलब 80/A0, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग बोलेगा तो क्या ढूंढेगा 80 अपॉन, फ्रैक्शन डिकेड बोला, फ्रैक्शन मतलब इनिशियली 1 होता है, उसमें से कितना गया तो 1 माइनस 80/A0। ये हिडन इन पर ये सब ऐसा सब में नहीं दिया, खाली ऐसा वर्ड यूज करेगा, मतलब आपको ये ढूंढने, आपका दिमाग चलना चाहिए। क्लियर है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग है ना। Oh yeah, good. This is very important. अरे सो मत रे, बहुत इजी है रे बेबी, वेरी चमन चिंदी दिस इज, या ये उठ रहे, लॉग ऑफ 1 क्या होता है बोल बेटा, 0, बोला था ना ये दो को बाय करने का तुमको, ये दो को सिर्फ लिख दो वहां पे, तुम लोग को पहले भी कराया था इक्विलिब्रियम चैप्टर यार ना, दिस टू यू विल बाय, ठीक है ना। बस बाकी ये 4 को क्या लिखने का, ये फॉर्म में लिखने का, log 2 raised to 2 तो 2 log 2, याद आ रहा है कि नहीं, log 10 is 1, सबको बेटा ये 2 और 3 के फॉर्म में लाने का, बस ये लोगों ने बाहर करने के बाकी सबको ये 2 और 3 के फॉर्म में लाने का, डन डन। चलो 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 डन डन डन। ये लॉग इस सब में क्यों करना है, बहुत सारे सब में log A0/80 आता है इधर, क्लियर है ना बेटा। एग्जामिनर का फेवरेट बेटा, फेवरेट क्वेश्चन बेटा, तो टाइम सर, रिक्वायर्ड, हाँ बोलो। मेरा 5 बजे से एक और क्लास है, मैं क्या अभी निकल सकता हूँ उसके लिए? 5 बजे को निकलेगा ना, 5 बजे को, तभी तो 17 मिनट टाइम है बेटा। सर ऑफलाइन है, वो पहुंचना है। अच्छा ऑफलाइन है। हाँ। अरे बेटा तो यार ये सम करा रहा था मैं तेरे को ठीक है रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, चल तू देख लेना, सर। ठीक है, ठीक है ना, चला जा बेटा। ए टाइम रिक्वायर्ड फॉर
75% डिकम्पोजिशन और 3/4 डिकम्पोजिशन, अगर ऐसा आया तो कैसे करने का? टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाउ मच डिकम्पोजिशन? 75% डिकम्पोजिशन। तो इनिशियल मेरा कितना होगा? 175 गया तो बचेगा कितना? अच्छा, तो अभी अपना ये फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये कापची मारा है, A0/80। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये अपना फॉर्मूला होता था कि नहीं बोलो? अरे कुछ कर मत वहां पे, कुछ बता रहा हूँ ना ये। तो A0 तेरा कितना है? 100। और ये कितना था? तो 100/80 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? तो 4 को ऐसा लिख सकती है, लॉग ऑफ 2/2। अरे log 4 है ना, log 4 को 2 log 2, तो 2 आगे चला जाएगा कि नहीं? अच्छा, फिर ये क्या बचेगा तेरे पास? ये बचेगा, ये क्या था तेरे को पता है? T½ होता था। क्या होता था? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 डिसइंटीग्रेशन इज 2 times T½ इट इज हाउ मच बेटा? 2 times T। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को और एक एग्जामिनर का और एक फेवरेट सम है। किधर गया? इसने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चलो मैं तुमको अच्छा ठीक। ये एनसीईआरटी का मेरे पास बुक है कि नहीं? कहाँ पर गया? देखने दो। चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का नहीं तो ये वाला मैं बुक ओपन करके बता। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, सेम 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 सेम, सब कुछ सेम है। क्या था? हाँ। ओई अम्मा, ओई अम्मा। Look, come on everybody. I'll do your this sums also बेटा। वो क्या बोलते वो जो तुम्हारे वो सब रहते नहीं क्या? क्यूबी वाले भी सब बताओ। पहला यहाँ पे चल, पहला मेरे को इसका आंसर बता। ये दो का आंसर कौन बताएगा बल? चले, कम ऑन कीगन बॉय। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। जीरो ऑर्डर, वेरी गुड। हे, इफ यूनिट इज के का यूनिट इज सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड। अभी ऐसा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चल ये वाला सम मुझे करने का है। ऐसे बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में, सम एज इट इज है, एनसीईआरटी का ही सम है ये। चलो मीका, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? टेल मी व्हाट इज गिवन। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाउ मच डिकम्पोजिशन बेटा हियर इज 3 times टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी डिकम्पोजिशन। बेटा आपका दो तरीका है इसका, एक तो शॉर्टकट में करने का, एक लॉन्ग कट, दोनों बता देता हूं, ठीक है? पहला मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 99.9% डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने बोलो? अभी आप ही मेरे को बताओ। 9% दिया रहेगा तो मेरा यहाँ पे A0 कितना होगा बोलो बेटा? 99% खत्म हो गया तो 80 कितना होगा बोलो? वेरी गुड। यहाँ पे A0 मेरा वापस कितना होगा? 100 ही होगा कि नहीं? और 80 मेरा कितना होगा? 90% गया तो कितना बचेगा? अच्छा, ये 99 पॉइंट, तो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% डिकम्पोजिशन इज हाउ मच बेटा? 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ऑफ A0/80। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, A0/80 तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 100/0.1, बरोबर ना? ओके, और इसका क्या आएगा बोल बेटा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, ए इट विल बी हाउ मच बेटा? 2.303/के लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे क्या है? इज 100/10। अब बेटा ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देने का बेस्ट, कभी भी ऐसा आएगा तो डिवाइड कर देने। तो अभी देख, 2.303 के कैंसिल कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। ऐसा जरूरी नहीं बेटा हमेशा ये कोई भी परसेंट होगा तो तुम कर सकते हो इससे। चलो भाई, नाउ नाउ व्हाट विल गेट? अरे 2.303 एंड 2.3 के कैंसिल होगा कि नहीं? ये 99.9%, नीचे इधर को क्या मिलेगा? 90%। ये लॉग ऑफ 100/0.1 मीन्स लॉग ऑफ 1000 ना, बराबर है कि नहीं? तो लॉग ऑफ 1000 लिख दूं क्या? नीचे यहाँ पे क्या है? लॉग ऑफ 100/लॉग लॉग 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, ये लॉग ऑफ, इसको हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ, log 10⁻³ और ये log 10 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ए लॉग A⁻B इज व्हाट? बराबर है कि नहीं? तो फिर अभी क्या हो जाएगा? पिक पिक। फिर क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बोलो ना।
तो अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम रिक्वायर फॉर इजिकल टू 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 टाइम्स टाइम रिक्वायर फॉर हाउ मच बेटा? प्लीज बेटा ये कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना प्लीज। अरे पीछे कहाँ पे भी जाएगा, बैक पेज पे कहाँ पे कर दो, एकदम नीचे आप क्वेश्चन भी कॉपी कर दो, एकदम पीछे एकदम ब्लैंक पेज होगा, एकदम पीछे ब्लैंक पेज है वहां पे, ये वाला सम कॉन। अच्छा इसमें कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे बेटा मैं 75% 25% भी ले सकता था, एनी वैल्यू आई कैन टेक। क्या करने का, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, खत्म, गेम ओवर। और 2.01 पे 2.01 के दोनों सेम ही, रिएक्शन का रेट तो सेम ही होगा ना। Did you write the journal? Did you write the journal? So you did 6 programs. I'm not even bought the journal. Yeah, I wrote it overnight yesterday in a question. Did you actually submit it today? Yeah, she messaged on the group. Yeah. Never even came today. Yes, she was. In the 11th, she made me write the journal and she did it correctly. I said she didn't make me write. Yeah, exactly. And then this time I'm giving my journal back for the right. And here to somebody. Yeah, actually. Yeah. How much is that cost? How much? How much? You will cost, I think you want to. At 550. I just don't know. It's 5 I think I'm going. I'll have to write the math one myself. Okay, and then fill it to get written. You have to do physics also, no? I think my Chem 1 is finished. Physics 1 will do. We have to buy the drone. I keep forgetting to buy it and leave it. And then after one, then look for the virus. What should we do for your project? What project? Switch from project, yeah. Bro, I haven't thought of anything. Abhi we were going to do some gambling thing. I know you told me. Yeah, but then it's just too lazy to do something. You just gonna get like that hotel management system from Google. What? It's like the most basic project you can. Yeah, but we'll still get the marks. If I ask questions on it also, we'll be able to answer. Yeah, that's it. You know, I'm like a few complex project that I'm doing. It's okay, right? Easy. Very easy. Okay. You do the project for us. You make the gambling. How much? Cloud study. Weekend. About, yeah, that's actually possible. 3 of us. Yeah. 1K each. Yeah, that's actually good. That's all it. Send me what's your idea. If I can do it. But what to do something with systems, na? Also, push you something with Python and it's very in details. You got to tell me I don't know. I don't like station. I put some ideas in the details, but she's not that sure. I like Russian. Yeah. I like the Pali and rainbow hair. Yeah. How do not you literally what is what can we do? क्या बे, तुम फोन देखने को बोला है, कॉपी करने को बोला है? हो गया हो गया ना, इसमें बहुत सारे सम आएंगे ऐसे। चलो अभी नेक्स्ट सम क्या है, रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं। yes क्या भूल गई क्या, ये देखना चालू है, देखना आई और स्क्रीन है, देख टिक टुक हो रहे, टुक 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 टुक, या हो गया कॉपी करके। चलो बेटा, अभी ना बेटा देखो ऐसे सम आएगा, ये सारे ना तुम्हारे इसी के सम है बेटा। सॉल्व ही बता देता हूं तुम लोग को, ओरली आप लोग बता पाओगे फटाफट, एकदम फटाफट। कहां से करूं?
चलो गणवीर बेटा यू विल डू, चलो आ जाओ बेटा क्या दिया ही अब। रीड क्वेश्चन एंड टेल मी फटाफट। हाँ, हाफ लाइफ इज गिवन और फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, समझ में आ गया ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये तेरे को क्या दे दिया है, A0। व्हाट विल रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, टाइम शुड बी ऑलवेज इन सेकंड, तो टाइम दे दिया है। और व्हाट विल रिमेन, रिमेन मतलब क्या बचेगा, 80। तुझे क्या ढूंढने का है, 80। और ये तेरे को टी हाफ सेकंड में दिया है कि नहीं बोल बेटा। अभी देख, मैं तेरे को दो तरीका था बेटा इसका करने का। देख, के का फॉर्मूला क्या होता था बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 अपॉन टी, याद आ रहा है कि नहीं, लॉग टू द बेस 10। हाँ, A0 अपॉन 80। अभी बेटा तू मेरे को बता, लेकिन के का फॉर्मूला और क्या होता था, 0.693 बाई टी हाफ भी होता था कि नहीं बोल बेटा। तो मैं अभी के जगह पे क्या डालूंगा बोल बेटा, 0.693। लेकिन तेरे को पता है 0.693 का वैल्यू क्या होता था बोलो बेटा। हाँ, इंटू 2.303 इंटू, अरे 2.303 इंटू 0.3 लॉग, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा बोल बेटा, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू 2.303, मतलब ये शॉर्टकट में बताया, वरना तू ईमानदारी से पहला यहाँ पे थे देख, तेरे को टी हाफ तो दे दिया है ना, तो इससे तू पहला टी हाफ ढूंढ, फिर के मिलेगा, फिर के वापस वहां पे डाल, लेकिन उसमें तेरे वहां डबल कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं मैन। तो 2.303 अपॉन 0.3, और क्या हो रहा था बोलो, अपॉन टी हाफ, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 2.303 अपॉन टी, लॉग टू द बेस 10, A0 बाय 80, राइट ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट कुड़ुक कुड़ुक, टी आपका वैल्यू कितना दिया है, 990। टी अपने को कितना दिया है, 35 मिनट को सेकंड में करेगा तो 35 इंटू। अच्छा, अभी बेटा ना ये वाला पार्ट एक तरफ रखने का, तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर अपने को इसमें से भी क्या पता है, A0 पता है। लास्ट में अपना एक स्टेप आएगा, लॉग ऑफ A0 अपॉन 80 अपॉन वट एवर आंसर वी गॉट। बट वो आंसर के लिए अभी तेरे को लॉग निकालना पड़ेगा, तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। आर यू गेटिंग इट डियर। अरे देख बेटा, मैंने ऐसा पूरा रामायण महाभारत किया यहाँ पर, मेरे को देखा ऐसा ये पूरा सॉल्व करके मेरे को कितना मिला, इतना मिला, बराबर है कि नहीं। फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग, हाँ तो एंटी लॉग, तो देख ना, एंटी लॉग ऑफ लॉग लेगी तो ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो देख तेरे को A0/80 मिलेगा, और इसका एंटी लॉग मैंने ढूंढ लिया। अब तेरे को इसमें से क्या पता है, A0 पता है। अरे A0 दिया गिवन ना, 0 पॉइंट कितना दिया था, तो अभी 82 ढूंढ पाएगी A0/this। एंटी लॉग का वैल्यू जनरली वो लोग देगी, लेकिन तुम लोग को लॉक टेबल आता है ना देखने के लिए, नहीं आता तो मैं तुमको बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। लॉक टेबल मैंने बताया था लास्ट टाइम भी तुम लोग को 11th में, नहीं तो लॉक टेबल है तुम्हारे पास, लॉक टेबल नहीं है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हम बताते बताते, लॉक टेबल सब बुक के पीछे रहता है बेटा। तुम्हारे पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रहता है कि नहीं, उसके पीछे भी होता है। हाँ, CBI। ओके एनीवेज बेटा, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सम। आरुष बेटा यू आर गोइंग टू डू इट, चल। व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% डिकम्पोज हो गया मैन, आरुष 60% डिकम्पोज हो गया। तो परसेंट दिया तो A0 कितना लेने का, 100। 60% गया चौली गेचे, तो कितना हो जाएगा 40, समझ में आ गया। ए टाइम कितना दिया है, टाइम मैंने तुमको क्या बोला, कभी भी सेकंड में होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। ओहो, अभी अपने को क्या ढूंढने को बोला है, हाफ लाइफ। तो दो तरीका था, पहले ईमानदारी से के दे, एक पहले ईमानदारी से के ढूंढ लो, बराबर है कि नहीं। तो ये log ऑफ 100 अपॉन log ऑफ 40, ये इजी है ना, log 10/4। log 10 का वैल्यू कितना होता था बोलो बेटा, 1। और अपन log 1 माइनस log 10 माइनस log 4, 1 माइनस log 4 इज 2 log 2, डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं। टी बताए तो के मिल जाएगा, के मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, टी ऑफ इजिकल टू व्हाट, क्लियर है। या तो तुम क्या कर सकते थे, दूसरा ट्रिक क्या था यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये के जगह पे मैं क्या लिखता था बोलो, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन टी ऑफ, तो आंसर फिर फटाफट हो जाता तुम्हारा, इजी है। I watch man, you have to do this now. What you're going to do? You watch.
अरे भाई किधर गया कलर, छुप रहा जा भाई, चुप रहा। चले। हम्म, प्रेशर दिया है यहाँ पे, गैस दिया है कि नहीं, गैस गैस। अरे गैस दिया है, देखना गैस। चले तेरे को सम देखने का ही ले आजा। फर्स्ट ऑर्डर भी दे दिया है। गैस गैस दिया है कि नहीं सब। अच्छा गैस के लिए आज हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो भाई। भूल गए। कैसे भूल जाते हो रे तुम लोग सब। तन्वी बेटा गैस के लिए क्या था बोलो बेटा। के इज इक्वल टू सब कुछ वही होता था 2.303 बाय टी। लॉग टू द बेस 10, खाली यहाँ पे क्या लिखते थे, P0/2 टाइम्स P0 माइनस Pt। भूल गई क्या। चल P0 ये देख, टाइम जीरो, ये तेरा क्या है P0 है। ये टाइम इतने के बाद हो गया तो ये क्या है पिट्टी है। टाइम कितना है 0 और 100 के बीच में, तो टाइम तेरा कितना हो जाएगा 100। P0 की जगह पे क्या डालेगी। यहाँ पे क्या होगा बोल 2 × 0.5। और यहाँ पे Pt की जगह पे क्या डालेंगे बोलो बेटा 0.6। हो गया। 0.5, 2 × 0.5 1 ना। हो गया कि नहीं सम। अरे बोलना। ना चिंदी था, यही फॉर्मूला डाला ना मैंने, कुछ किया क्या। अरे कुछ किया क्या बोलना। अच्छा। अब ये ना बेटा तुम्हारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को मेरे को ओपन करने दो, एनसीईआरटी। नहीं नहीं नो 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 नो। सेकंड ऑर्डर भी नहीं होगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है। देख अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये देख बेटा, ये मैं तेरे को करा रहा हूँ ना, ये 12th का बुक, ये देख अभी आज ही हम लोगों ने क्या 19 कितना होगा बोलो बेटा। 3T। वेरी गुड। अभी देखिए ये ग्राफ आज हम लोग ने किया था ना। LN80 वर्सेस LN80। 80 बोला है, मतलब लॉग वो 2.303 नहीं होएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बोला है। तो हम लोग ने ऐसा किया था तो क्या होता था, स्लोप क्या होता था माइनस के नहीं माइनस के। हाँ वेरी गुड। अभी ये तो ओरली भी अच्छा, ये ऐसे सब भी हम लोग कर सकते हैं। देख 0.8 से कितना बोला है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ 0.8 से कितना बोला है। और टोटल टाइम दिया। अच्छा ये वाला मस्त है, ओरली कैसे करने का देखे भाई। आरुष बेटा 0.8 से में कितना हो गया बोल। और टोटल टाइम कितना दिया इसके लिए। अच्छा 0.8 का हाफ, 0.4 का हाफ। मतलब अभी तो देखा ये 12 है, बराबर है कि नहीं। तो अच्छा 12 को अभी कितना, 2 एरो आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर, तो ये भी कितना होगा 6 आवर्स, ये भी कितना होगा। अच्छा अभी इसमें और एक मैं तेरे को बताता, अभी एग्जाम में ना ऐसे बहुत सारे सम आते हैं, लेसन ना बेटा, ये फास्ट कैसे करने का। वो लोग ने दिया रहेगा, इनिशियल मेरा वैल्यू है लेटेस्ट से 2 है, कितना है। ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 2 दिया है। और मैंने बोला हाफ लाइफ भी मैंने दे दिया, टी हाफ दे दिया बेटा लेटेस्ट से 5, कितना दे दिया है। और मैं बोलूंगा आफ्टर 20 मिनट्स कितना बचेगा। आफ्टर 20 मिनट्स कितना बचेगा, बरोबर है। आफ्टर 20 मिनट्स हाउ मच विल रिमेन। इनिशियली मैंने कितना दिया है 2 दिया है। तो हाफ लाइफ कितना है 5। तो चलो बेटा 5 मिनट्स, फिर वापस 5 मिनट्स, फिर वापस 5 मिनट्स, फिर वापस। तो कितना एरो बनाया, हाँ 4 बना दिया। तो इतना समझ में आया। हाँ टोटल टाइम और हाफ, मतलब तेरे को एरो मिल जाएगा 4, 2 का हाफ, 1 का हाफ, 0.5 का हाफ, 0.25 का हाफ। हो गया आंसर। कोई फॉर्मूला यूज करने का। कभी कभी मैंने ऐसा भी बोला, आज मेरे को, आज मैं हूँ 10। तो मेरा हाफ लाइफ था लेटेस्ट से 5। तो 20 मिनट पहले मेरा कितना होगा, पहले मैं कितना था, दिस इज माई फाइनल, तो इनिशियल कितना होता। तो ये देखना टोटल टाइम दिया है और टी, तो टोटल कितना एरो बनेगा 4 ना। तो मैं 4 टाइम्स ऊपर जाने का। समझ में आ रहा है। आज मैं कितना हूँ 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 का डबल और 80 का डबल। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे बिफोर पूछेगी तो डबल करने का, आफ्टर पूछेगे तो हाफ हाफ करने का। आर यू गेटिंग, ऐसे है बहुत सारे एमसीक्यूज। वही अम्मा। ए
देख बेटा, अभी है ना, मैं तेरे को ये बजा मत दे, तेरे को ही बजाएगा अभी मैं। ये देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब कर पाओगे कि नहीं? यू टू जस्ट सब्स्टिट्यूट। ये देख, व्हाट आर सीडो फर्स्ट ऑर्डर, गिव एग्जांपल, बरोबर है। जीरोथ ऑर्डर फॉर फर्स्ट एक्स ग्राफ, जीरोथ ऑर्डर का आज किया था कि नहीं? रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर आज किया कि नहीं, बोलो? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी कर दिया था कि नहीं? फिर ये रेट लॉ, मतलब रेट कांस्टेंट इन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर आज किया कि नहीं, बोलो? फिर ये देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर आज किया कि नहीं? ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर किया कि नहीं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आज प्रेशर का किया था कि नहीं? 2.303 अपॉन के लॉग टू द वेस्टर्न पी 0.2 पी 0 माइनस पी टी। अरे जीरो ऑर्डर का ये सब किया कि नहीं, बोलो? ये देखिए, अभी ओरली तुम लोग कर सकते हैं मैन। अरे क्या है, हाफ लाइफ 1.7 आवर्स दिया, तो 1.7 इंटू 60 क्यों सेकंड में होना चाहिए टाइम। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू डिके, तो इनिशियली 100, फाइनल कितना होगा, 20 गया तो 80 है कि नहीं? ये वर्ड वेरी इजी मैन, वेरी वेरी इजी। ये भी बताया, ये भी कर सकते कि नहीं? एक टाइम दे दिया, टी 30% डिकम्पोज हो गया। हाँ तो 70/100 माइनस, हाँ समझ में आया कि नहीं? ओ माय गॉड, ये कोई एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लाया है क्या? क्यों बे, ये कोई केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक लाया है क्या? व्हाट जोया, यू आर सो रिसोर्सफुल एंड यू आर नॉट ब्रिंगिंग टेक्स्ट बुक मैन, वेरी बैड। अरे मैं तुमको वो एग्जेम्पलर एग्जेम्पलर The teacher wants to know the time. ओ टाइम बेटा, आई नो इट इज अ गुड टाइम बेटा, खाली एक मेरे को बताने दो ना बस। गुड टाइम टू स्टडी, गुड टाइम टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस। कहाँ पर पहुंच गए हम लोग, ये क्या है, तेरे को क्या दिख रहा है, कौन सा चैप्टर दिख रहा है? 11th का ओपन किया मैंने। Yes. नहीं रे। So Pradeep. प्रदीप प्रदीप, ये तुम्हारा रेफरेंस बुक है मेन, कंपटीशन फोकस, ये देख। ए वेट 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 वेट। Oops. हाँ ये रे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ फर्स्ट आई डू ऑल योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, है फटाफट देखने का बेटा, टाइम पास नहीं। जो मैंने किया वही वाला मैं करा होगा, कुछ नया नहीं करा, हाँ, देखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बरोबर ना, यही होता है ना ऐसा। ये सब नहीं पढ़ाया, ये सब जान दो, ये नहीं पढ़ाया है, जो पढ़ाया वही मैं बताऊंगा बेटा। ये टेक्स्ट बुक के सब है ना बेटा सब। और क्या क्या दिया है? हाँ ये रहा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, बराबर तो दिया है बेटा। ये आइए हम लोग ने किया था ना रेट, हाँ. ठीक है ना बेटा, वो सब मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी एवरीथिंग, बट आज जो मैंने किया वो मैं कराता, देखो मैं दूंगा ना, कभी कभी ये कहना चाहता, कभी कभी लोग ऐसा टेबल देंगे, क्या देंगे? देखा ऐसा दिया है, दिख रहा है कि नहीं? फिर क्या बोला है कि एवरेज रेट ढूंढो, फिर बाद में क्या बोला, रेट कांस्टेंट। अभी बेटा रेट कांस्टेंट में देख, टाइम इंटरवल पहले क्या लिखोगे, ए सुन, ये तुम्हारा टाइम है ना, तो ए 0, और ये फर्स्ट टाइम के लिए करोगे तो 80, इसका टाइम इंटरवल कितना होगा? पहला ये सॉल्व करके के का वैल्यू ढूंढना, फिर ए 0 से ये 80 होगा, फिर ए 0 से, तो अपन में हर एक टाइम में देख तीन अलग अलग कैलकुलेशन किया, दिख रहा है 30 60, और सब में तुम्हारा ये जो क्या आएगा, तो फिर एवरेज के लिए क्या करने का, तीनों को डिवाइड बाई 3 करने का, एवरेज लेके। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट यार? फिर ये वाला नहीं पढ़ाया है मैंने, जो पढ़ाया है वही मैं लेकर आऊंगा। ये देखिए, ये भी कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये कर पाओगे कि नहीं? ये रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है, अपना फॉर्मूला से आ जाएगा डायरेक्टली। ये देखिए, ये भी आएगा कि नहीं? देख क्या लिखा है, आर्कियोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, कितना बोला, हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन इन लिविंग इन द ट्री, 80% बचा, मतलब फाइनल 80 ही बचा, समझा ना, तो 20 गया, तो ये तेरा ए 0 होगा, ये तेरा एस्टिमेट द एज ऑफ, मतलब टाइम ढूंढने का है, कर पाओगे ना बेटा? और हाफ लाइफ वो लोग ने दिया है, देख इजी है कि नहीं, बोलो क्या? अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो आ जाओ, क्या बस बस कुछ नहीं। अरे ये सब अभी देखिए, अरे ये सब सिमिलर सम है बेटा, देख नहीं, हाँ तो यू विल डू इट, तो मैं देखता हूँ, ये देख, 9 टाइम रिक्वायर फॉर 99,
हाँ अरे वी डिड जस्ट नाउ दिस बेटा 33. नहीं नहीं ए दिस इज डिफरेंट that was 99.9 and this is what so same thing you are going to do it will become 2 times ये भी आ जाएगा अभी किया था हम लोगों ने हाँ रुक जाइए प्रेशर वाला आ गया हाँ हाँ वही तो ये क्या हो जाएगा वो लेकिन ये सुन 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 तेरे को यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा के हाँ वो एक ये पी 360 ये का एक ये set पी कर जीरो दिया। फिर पीटी फिर वापस पीटी हाँ फिर 360 फिर 760 आर यू गेटिंग इट और नॉट अरे देखना ये मैंने किसके साथ किया 360 ये कितना हाँ, और दोनों का एवरेज लेने का ये तो हो गया। ये अब भी किया था याद आ रहा है ना हाँ एक ही बार में P0 माइनस 2P0 पक्का ना हाँ चलो चलो कोई बात नहीं चलो चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा आई विल डू बेटा हाउ टू राइट रेट लॉ एंड चलो देन बाय बाय इतने सारे नहीं दिख रहा हाँ 20 words.